Hello students, earlier we have discussed about the concept of pressure and we have discussed about liquid pressure. Now we will discuss about atmospheric pressure. Now we know that the air is all around us and this envelope of air is known as atmosphere, which is extended up to many kilometers above the surface of the earth. So atmospheric pressure is defined as the force per unit area exerted against a surface by the weight of the air above that surface. Now we know that Earth is there is atmosphere, the envelope of air. It extends up to many kilometers above the surface of Earth. So the Earth atmosphere, which is surrounded by a layer of air or layer of gases, it exerts a pressure which is known as atmospheric pressure, and it is measured with an instrument called barometer. That is why the atmospheric pressure is also referred to as barometric pressure. Now why we don't feel this? If there is atmospheric pressure, why we don't feel it? Because we don't feel this tremendous pressure because the pressure of the blood and other fluid present in our body almost balance out this atmospheric pressure. Also, this atmospheric pressure is different at different places on Earth. It depends on altitude, means how much higher we go. So as we go higher, what happens? The density of air decreases. Suppose this is our sea level, and as we go higher, so what happens here? Density of air decreases. So what happens when density decreases? So pressure decreases. Pressure decreases. So when density decreases, pressure decreases. This is the reason why astronauts wear special pressurized suit which help them balance the pressure from inside. To better understand it, let us consider an experiment. Let it understand through our tin can experiment. What we will do, we will take a tin can and we will fill this tin can with water, and then we will just boil it. Okay, when we boil it, after boiling, we will just seal this can. So why we have sealed the tin can? So that the steam at low pressure is trapped inside. Now what we will do? Now after this, we will just pour some कोल्ड वाटर ऑन टिन कैन फ्रॉम आउटसाइड. हमने क्या किया है? हमने एक टिन कैन लिया है जिसे पानी से भरा है. उसके बाद हमने इसको बॉयल किया ताकि उसमें वाटर वेपर भर जाए. उसके बाद हमने इसको स्टॉपर से बंद कर दिया ताकि अंदर की जो स्टीम है जो कि लो प्रेशर पे है वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना आ पाए. उसके बाद हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला या इसको ठंडे पानी में डुबो दिया. ओके, दिस इज़ आवर कोल्ड वाटर. अब क्या हुआ? जैसे ही कोल्ड वाटर इस पे हम लोग डालते हैं, टिन कैन अंदर की ओर कोलैप्स कर जाता है. ठीक है, वाई दिस सो? इसका रीज़न ये है कि जब हमने इस पे कोल्ड वाटर डाला तो अंदर की जो स्टीम जो थी, जो वेपर के फॉर्म में थी, वो क्या हुई? कंडेंस हो गई. अब जब कंडेंस हो गई तो अंदर का जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस कर गया. अंदर का एयर प्रेशर कम हो गया और बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा, यानी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर वर्क कर रहा है. ठीक है, और अंदर जो है एयर प्रेशर कैन के अंदर जो है एयर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है. तो इसकी वजह से जो बाहर का जो प्रेशर है, जो डिफरेंस हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर में, इसकी वजह से बाहर से प्रेशर एक एक्सटर्नल फोर्स डाल रहा है इस कैन के आउटर पार्ट पे. तो जैसे ही वो फोर्स डाल रहा है जिसकी वजह से ये टिन कैन अंदर की ओर क्रश कर गया, क्योंकि ये बाहर से फोर्स डाल रहा है अंदर की तरफ. व्हाट इज़ द रीज़न? ड्यू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारी डे टू डे लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं? नाउ लेट अस सी. अवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. नाउ हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वर्किंग हियर? सो व्हेनेवर वी ड्रिंक यूजिंग स्ट्रॉ, होता क्या है
कि हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रॉ से सक करते हैं अपना लिक्विड, अपने लंग्स के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू जब लिक्विड सक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर की एयर पूरी हमारे लंग्स में गई। उसके बाद इस स्ट्रॉ के अंदर क्या हुआ, प्रेशर अंदर इसके प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। अब क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, अब जो एक्सटर्नल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, जैसे कि अभी हमने टिन कैन के एक्सपेरिमेंट में देखा था। अब अंदर स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम है और बाहर का ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्या करेगा, लिक्विड का जो सरफेस है, जो ग्लास में जो लिक्विड का सरफेस है, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसके अंदर जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने देखा था टिन कैन एक्सपेरिमेंट में, जो डिफरेंस ऑफ द प्रेशर की वजह से टिन कैन क्रश किया था। नाउ वैक्यूम क्लीनर अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू रिमूव डस्ट पार्टिकल। होता क्या है, जब वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑन किया जाता है तो जो फ़ैन जो होता है वो अंदर के स्पेस से पूरी एयर निकाल देता है, जिससे अंदर वैक्यूम बन जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, अंदर वैक्यूम की वजह से अंदर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, तो जिसकी वजह से विच फोर्सेस द एयर एंड द डस्ट पार्टिकल इनटू द filter bag. Then the dust particle are trapped, but it allows the air to flow through the exit at the back of the vacuum.